वेलकम बैक टू एसएम क्लासेस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर let's मान के चलो कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। सो व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन and there is another one concept which is in a two variable. So we want to know about a linear also and we want to know about a linear equation in a two variables. So let's assume it. So if a power if power of equation is 1. Okay, if power of equation is 1 and it has a two variable and it has two variable, so such type of equation we call it as an equation in a two variable. So let's try this. X plus y is equal to 9. So this is equation, or this is one example. So this is one variable, first variable. Okay, this is second variable. Okay, and this is a constant. If you observe, the power is 1, power of y is 1 and c is the constant, so we are not considering this power for it. Okay, now if you observe this, if you want to write another one example, so let's write down another one example. So okay, so let's write down another one example. Sorry. Okay, so write down another one example. 3x plus 4y equals to 9. 3x plus 4y is equal to 9. So likewise we are writing equation. So let's move to the next question. Or so what is the standard form of linear equation? Okay, so right now we are discuss about this example. So this is first example, this is second one example. Okay, now what we are discussing right now, what is the standard form? Okay, if you're writing any example, so it has a standard form and this is the standard form of given equation. So ax plus by plus c. So a, which is the coefficient of x, b, a, b and c. Okay, a is equal to, this is a coefficient of x, b is equal to coefficient of y and c, that we know c is a constant. Clear hai? And on the basis of that, so they will ask you question, just find the value of a, b and c. So what is the value of a, what is the value of b and what is the value of c? So such type of questions they will ask you. Okay, so let's try this. अभी एक एग्जांपल हम कर लेते हैं ताकि आपको भी आइडिया आ जाएगी कि कैसे, how you will find it a, b and c. Okay, so let's write down equation. Suppose 3x plus 4y equals to 9. In that case, a, if you compare this with the ax plus by equals to c. Okay, after the comparison, what we get, what we observe? So a, okay, if you observe, the coefficient of a is 3, sorry, coefficient of x is a, and in this equation a is nothing but 3. Similarly, b is a coefficient of y in a standard form, so here 4 is a coefficient of y, and here c, which is constant. Already we know that 9 is a constant. Just write down by comparing with the standard formula or standard form of equation in a two variable. So a is equal to 3, b is equal to 4 and c is equal to 9. So likewise we will solve such type of examples. Even if you want to try more examples, then also let's try this. Okay, oh my god, leave it. Suppose another one example, 2x plus 3y equals to 9.
or just an example 19 is there. So in this case, if you compare with the standard form ax plus by equals to c, so we get a, or we will get a value of a is equal to 2, b is equal to 3, and c is equal to 90. So likewise, you will get a value. So a is equal to 2, b is equal to 3, and c is equal to 90. So likewise, here also we observe a is equal to 3, b is equal to 4, and c is equal to 9. So likewise, you will get a value of a, b and c. ये कहाँ पे यूज होंगी? जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब हमें ये फॉर्मूला मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे वहाँ पे ये जरूरी है. Okay, let's move to the next slide. So what is the next slide? So this is a slide which gives us an idea about linear equation in two variable. So a few examples which is already mentioned over here. So let's try this. First example, 4x plus 5y is equal to 3. Second example, 5u minus 6v is equal to 67, and 3w minus 5x is equal to 66. So for this all examples, we will try to find a value of a, b and c. So therefore I will write here, for first example, a is equal to 4 because 4 is the coefficient of x. So b is equal to 5 and c is equal to 3. Similarly, for second one, a is equal to 5, b is equal to minus 6, and c is equal to 67. Similarly, for third, a is equal to 3, b is equal to minus 5, and c is equal to 66. So these all are the values of a, b and c. Okay, likewise you will get a values of a, b and c. So this is value of a, b, c. Correct है? चलो. Now there is one another one concept that we will learn in this case. अब मान के चलो इक्वेशन जो है वो अगर आपको सॉल्व करने के लिए दिया है. ओके, लेट्स टेक एग्जांपल 3x plus 2y equals to 9. एक एग्जांपल है. अब इस केस में x वेरिएबल है, y वेरिएबल है. सो और इसका जो पावर है वो 1 है. तो एक हम इक्वेशन किस में आ रहा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. बट अगर ऐसे दो इक्वेशंस अगर आपको एक साथ दिए, मान के चलो 2x minus 6y equals to 20. So ये दो, this group or pair of this equation we call it as a simultaneous equations. Okay, simultaneous equation means it has so two equations which has a two variable. Okay, so such type of equations we call it as a simultaneous equations. Let's try this. So what is our example which is already given to you? So 4x plus 56y is equal to 89. And another one example which is already given to you. So 3x minus 4y is equal to 65. ये भी एक एग्जाम्पल है. इवन अब हमने ये लिखा है, so 3x plus 2y is equal to 9, 2x minus 6y is equal to 20. This is also best example of a simultaneous equation. Now let's move to the next slide. Okay, so if you want to solve this equation, okay, so there are a few types to solve this equation. अगर मान के चलो अभी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व भी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है? So there are various types to solve a simultaneous equation. So various types means, so we will solve this by elimination method, substitution method, by Cramer's rule, then afterwards by graphical method. So there are four methods to solve a equation. So before we are talking about four, just quickly we will discuss two examples. So let's talk about two methods. So what is the first method? Oh my,
Okay, so what is the first method? Elimination method, and second one, substitution method. So these are the two methods very commonly or very oftenly they ask in a exam. So how you will solve this? We will solve one example. Okay, the example which is already on your screen: x plus y is equal to 4, x minus y is equal to 6, and we have to find the value of x and y. Okay, so how you will solve this? So this is your question: x plus y is equal to 4, x minus y is equal to 6, and by using these equations we will find the value of x and y. And the most important thing, we will solve this example by elimination method. Which method? elimination मेथड. elimination मेथड में पहले जस्ट एक मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगा. eliminate कर रहे हैं मतलब एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं ये पहले डिस्कस करते हैं. ओके, elimination जो मेथड है इसमें अगर मान के चलो मुझे x वेरिएबल को eliminate करना है. ठीक है, x वेरिएबल को मुझे क्या करना है? eliminate करना है. मतलब मुझे इसका जो कोएफिशिएंट है वो मुझे क्या लाना है? जीरो लाना है. ये ध्यान में रखो, जिसको भी आप एलिमिनेट कर रहे हो उसका कोएफिशिएंट क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए. अब वो एलिमिनेट होगा कैसे होगा? एक तो ऐड करो या फिर सब्सट्रैक्ट करो. ओके, बट किसको ऐड करना है किसको सब्सट्रैक्ट करना है ये भी इंपॉर्टेंट है. अगर मान के चलो हमें एक्स को एलिमिनेट करना है तो पहले इक्वेशन का एक्स दूसरे इक्वेशन में भी एक्स होना चाहिए. ओके, सेकंड, अगर पहले का कोएफिशिएंट 4 है तो दूसरे कोई इक्वेशन में भी उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए. अगर दोनों 4x है और हम अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0x हो जाएगा. क्लियर है? ठीक है. सिमिलरली अगर मान के चलो दोनों का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं -4x और दूसरा है +4x. -4x है और एक +4x है. इफ यू ऑब्जर्व द साइन, so this is, if you observe the sign, so what is the sign for this case? Okay, this is -4, this is +4. Okay, and our target is to, we want 0x over here. ठीक है. So in this case, if you subtracted, okay, then what will happen? This -4 it becomes a -8. So subtraction is not valid over here. Okay, let's consider this. If you added this equation, so I will write a plus sign over here. If you added this equation, so what will happen? -4 plus 4. Okay, it becomes 4 minus 4. So 4 minus 4 is equal to 0. मतलब ये सिचुएशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. तो हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया? एक क्विकली रिकैप ले लेते हैं. हमने क्या नोटिस किया है यहाँ पे? अगर किसको भी आप इलिमिनेट कर रहे हो, ओके, जिसको आप इलिमिनेट कर रहे हो उसका अगर कोएफिशिएंट सेम है, ओके, तो कोएफिशिएंट उसका क्या चाहिए? हमें सेम चाहिए, दोनों का इक्वल चाहिए. सेकंड कंडीशन हम क्या करेंगे? जस्ट वी विल डिस्कस साइन ऑफ इट. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द साइन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनती है. ओके, एक तो सेम साइन होगा प्लस प्लस माइनस माइनस या फिर प्लस माइनस माइनस प्लस. अगर सेम साइन है तो हमें क्या करना है? सब्सट्रैक्शन करनी है. ठीक है. तो ये सेम साइन है, दोनों का भी प्लस है माइनस है, तो हमें क्या करना है? सब्सट्रैक्शन लेनी है. और अगर अपोजिट साइंस है, ओके, तो हमें उसको क्या करना है? ऐड करना है. क्लियर है? अगर ये शॉर्टकट या फिर ये जो ट्रिक है वो अगर आपके दिमाग में एक बार फिट बैठ गई तो कोई भी एग्जाम्पल होगा उसको इस केस में ऐड करना है. यहाँ पे बोला है टू एलिमिनेट वाई ऐड द इक्वेशन. भाई ऐड क्यों किया? व्हाट इज द रीजन? ये रीजन है भाई इसका. अगर ये सब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या मिला? दोनों भी पॉजिटिव है. यहाँ पे सॉरी, दोनों निगेटिव है. एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है. डिफरेंट साइंस है तो डिफरेंट साइन ने
इसका मतलब हमने क्या किया यहाँ पे, ऐड किया। अगर प्लस प्लस होता, माइनस माइनस होता, टेक एग्जांपल हियर, +4x +4x, हमने क्या की, सब्सट्रैक्शन ले ली। तो ये देख लो यहाँ पे और एक देखते हैं, -4 +4, ओके, -4 +4, तो करना क्या है, ऐड करना है, सिंपल सा है। सो इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें कंडीशन जो मिल रही है, हमें जो उस कंडीशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि जो भी पॉसिबिलिटी है उसकी अकॉर्डिंग हमें वो एलिमिनेट करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है वो डिसाइड कर लो पहले। ठीक है, चलो क्विकली मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन। ओके, अभी एक एग्जांपल हम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो है वो वर्क नहीं हो रहा है, मैंने लॉक कर दिया है पूरा सिस्टम, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम देगा। चलो लेट्स मूव टू द actual application of example. Okay, so what is the condition, x plus y, okay, x plus y, x minus y। अब हम उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। चलो, so to find value of x and y, so पहले क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन कोएफिशिएंट ऑब्जर्व कर दो। सो फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या है अपना, x है, दूसरा y है, इस केस में भी x है, यहाँ पे y है। So choice based है, either if you want to eliminate x then it is okay, if you want to eliminate y then also it is okay with। मैंने, अब अपोजिट साइन है, ऐड करना मुझे आसान लगता है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको ऑब्जर्व कर दिया, x, सॉरी y को। सो इफ यू ऑब्जर्व द कोएफिशिएंट ऑफ y, सो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो आसानी से क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ मैंने क्या किया, टू eliminate this, okay, just add the equation 1 and 2। इसको हमने 1 कंसिडर कर लिया, दूसरे को 2 कंसिडर कर लिया। now solve this, so what will happen, x plus x it becomes 2x, x minus sorry y minus y is equal to 0y। so 0y लिखो मत लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, so there is no need to mention it। second one, 4 plus 6 it is equal to 10। So our target is to find a value of x. So simply convert this or migrate this to. So here is a multiply. If you shift it there, it goes, numerator. It is at a numerator. It will go to the denominator. So x is equal to 10 by 2. So if you after simplification, क्या मिलेगा? X is equal to x is equal to 5. So 5 2 जा 10 होता है। Now अब x तो मिल गया भाई, अपना तो आधा काम यहाँ पे खत्म। Okay, so we get a value of x। अब दूसरा क्या है, वाई भी तो निकालना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही जूता पहन के निकल गए, नहीं होता है। सो टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ वाई, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, पुट वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपने देखा होगा, व्हाइल वी आर सॉल्विंग इक्वेशन, एक वेरिएबल पता है तो दूसरा वेरिएबल आसानी से मिल जाएगा। सो पुट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। सो एक्स प्लस वाई, मैंने 1 क्यों लिया, क्योंकि भाई एडिशन है, ज्यादा कैलकुलेशन की झिकझिक नहीं है, इसलिए मैंने वो, और लेते समय यहाँ पे कोई भी आसान वाला लेना है इक्वेशन। ओके, ज्यादा भी स्टंट नहीं करना है, जो सिंपल है वही लेना है। अब सिंपल है मतलब देखो इसमें कैलकुलेशन कम है, तो आसानी से हमें आंसर भी मिल जाएगा, और क्वेश्चन गलत होने का चांस जो है वो कम हो जाता है, सो रिस्क फैक्टर कम है। ओके, सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या मिलेगा, x plus y is equal to 4, so simply put the value of x। so x is equal to 5, इसको हटा दो, 5 को डाल दो, 5 plus y is equal to 4 मिला। so therefore y is equal to 4 minus 5, so therefore y is equal to -1। so the solution is, okay, so what is the solution, so this is the solution। so x is equal to 1, oh sorry, x is equal to 5 and x is equal to, सॉरी y इज इक्वल टू -1। ये आपका बना सॉल्यूशन। अब देख लेते सेम एग्जांपल हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखेंगे तो क्या मिल रहा है हमें। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल। सो वी विल सॉल्व दिस
same example by substitution method. Okay, substitution method means इसके बारे में पहले जानना जरूरी है। हम करेंगे क्या, एक की वैल्यू हम निकालेंगे। ओके, एक की जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे और उसको हम क्या करेंगे, दूसरे वैल्यू में पुट करेंगे। क्लियर है? लेट्स ट्राई दिस। किसी भी एक इक्वेशन को हम कंसिडर करेंगे। ओके, और उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे और उस आइदर x और आइदर y एक ही मिल सकती है आपको। Okay, so this is first example. So what we are doing, just from equation number 2 we get a x is equal to y plus 6. X is equal to y plus 6 कैसे मिला? देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 था, इसको मैंने यहाँ से यहाँ पे माइग्रेट कर दिया तो माइनस वाई वहां पे चला गया, प्लस वाई हो गया, सो y प्लस 6 मिला। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, भाई हमें x तो पता है, x इज नथिंग बट y प्लस 6, तो हमने रिप्लेस कर दिया इसको, y प्लस 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मिला। नाउ हमें पता है जस्ट नंबर नंबर के साथ मल्टी ऐड होगा, वेरिएबल वेरिएबल के साथ ऐड होगा। सो अब हमने क्या किया, नंबर को एक साथ लिया, वेरिएबल को एक साथ लिया, y प्लस वाई 2y बना। ओके, नेक्स्ट वन, दिस प्लस 6 इफ यू शिफ्टेड देयर तो क्या हो जाएगा, -6, सो 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6। अब 4 माइनस 6 -2 होता है, सो -2 इज इक्वल टू 2y। सो ये जो न्यूमरेटर वाला 2 है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2/2 1, ए माइनस साइन एज इट इज रहेगा, सो वी गेट y इज इक्वल टू -1। अब यहां तक हमारा आधा काम हो गया। आधा काम हो गया मतलब क्या, y तो मिल गया। ओके, अब y मिला है तो बाकी का भी मिल जाएगा। ओके, ओ ओ ओ चलो, y मिल गया। अब हमें करना क्या है, खाली उसकी वैल्यू निकालनी है। और ये तो बवाल हो रहा है, चलो लीव इट। सो वी नो द वैल्यू ऑफ y, सो सिंपली क्या करना है, जस्ट पुट अ वैल्यू ऑफ y इन गिवन इक्वेशन। ओके, so let's assume it, this is our equation number 1। so x प्लस, अब यहाँ पे 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट हमें अपना कैलकुलेशन आसान बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। सो हम क्या करेंगे, जितना वो आसान रहेगा उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। चलो, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, so value of y is equal to -1, so x minus 1 is equal to 4। एज यूजुअल -1 शिफ्ट होगा तो वहां पे जाएगा, +1 होगा, सो 4 प्लस 1 बना 5, सो x इज इक्वल टू 5। देख लो, पहला आंसर भी वही है, यहाँ पे x की वैल्यू भी वही है, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1। अब दिक्कत ये नहीं है कि आप किस मेथड से सॉल्व करते हो। ओके, क्वेश्चन दिया है, किसी भी मेथड से सॉल्व करो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। चलो, सो कोई और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत से एग्जांपल्स आपको टेक्स्ट बुक में आपके दिए हैं। ओके, तो और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा इसमें इंटरेस्ट आ सके। सो अब हमारे पास रेडीमेड डेटा नहीं है, अब जो भी हम लिखेंगे वो अपने हाथ से लिखना पड़ेगा। ये मैंने मेरे दोस्त आशीष भैया की हेल्प से ही बनाया था। अब यहाँ से हम पेन पेंसिल से चलेंगे। ओके, so quickly write down the next question। Okay, so next question is uh, assume it 5x plus 3y equals to 9। This is first equation। Second one, 2x minus 3y equals to 12। So as usual we know, number it, so this is equation number 1, this is equation number 2।
सो सिंपल सी बात है, 1 2 हमने नंबर दे दिया। नाउ व्हाट इज आवर टारगेट? सो फोकस ऑन अ कोएफिशिएंट। सो यू ऑलवेज कीप इन माइंड, हमें किस पे फोकस करना है? कोएफिशिएंट पे फोकस करना है। लेट्स सी, द कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू +3, कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू -3। सो साइन पहले तो इग्नोर कर दो साइन, बट यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट सम देखना है आपको। +3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, y है, y है, 3y 3y। यहाँ पर मतलब हमारा जो पहला टारगेट था वो हमने डिसाइड कर लिया। चलो, सो व्हाट इज आवर टारगेट? सो y is our target. So to eliminate, so to eliminate y, so to eliminate y, ऑलरेडी बोला है अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे? Add above equation. Now let's add this equation. So first of all, 5x चलो 5x plus 3y is equal to 9। ये पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा कौन सा है वो भी देख लो। सेम अपना वाला दूसरा लिख लो 2x minus 3y equals to 12। So to eliminate y, so what is the next step? Add this equation। So add करके देख लो। add मतलब क्या होगा? Just write down like this, 5 plus 2 7x, 3 minus 3 0y equals to 9 10 11, 11 plus 10, so 21। So similarly, so therefore what we get? 7x is equal to 21, x is equal to 21 upon 7। So simplify this, 7 1s are 7, 7 3s are 21। So write down here x is equal to 3 बना। So यहाँ पे अपना पहला जो टारगेट था वो मिल गया। So क्या मिला? x is equal to 3। So similarly to find the value of y, अब इसी पे हमें हार माननी है या फिर चुप रहना है क्या? नहीं। So find y, put x in equation। अब कौन सा इक्वेशन ले रहे हो आप? 5x plus 3y is equal to 9। फिर से एक बार बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन आया होगा, भाई यही क्यों लिया? देखो, इसमें माइनस है, कैलकुलेशन में फिर माइग्रेशन करो, ये करो वो करो, तो बेटर भाई ये प्लस है वो ले लिया हमने, थोड़ा आसान जाएगा, ये मुझे लगता है। बाकी आप अपना देख लो आपको कौन से तरीके से सॉल्व करना है। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट स्टेप क्या है? x is equal to 3, so write down here 5 multiplied by 3 plus 3y equals to 9। So 5 3s are 15 is equal to 3y, sorry 15 plus 3y is equal to 9। So 3y is equal to 9 minus 15। So 9 minus 15, so फिर से अपोजिट साइंस है। सो 15 माइनस 9 कर दो। सो 15 माइनस 9 क्या होगा? ऑब्वियसली 9 10 मतलब 6। बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है? -15, तो ये -6 हो गया। सो देयरफॉर 3y इज इक्वल टू -6। सो y इज इक्वल टू क्या आएगा? ऑब्वियसली 6/3 2, और ये -2 एज इट इज। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन क्या बना? x, y इज इक्वल टू 3, -2। सो ये बना आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है? एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अब बहुत से ऐसे एग्जांपल्स है हम सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स आते हैं कि जिसमें हमें डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड
कोएफिशिएंट ऑफ ए कोएफिशिएंट ऑफ बी जो दिया है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं होता है, तो उस केस में आप क्या करोगे? ओके, मीन्स सपोज द एग्जांपल इज लाइक दैट, सो 1 upon 3, so question is like that, 1 upon 3x plus y is equal to 10 upon 3। ये पहला एग्जांपल है। लेट्स सेकंड वन, सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं कैसा है। सो सेकंड एग्जांपल इज लाइक दैट, 2x 2x plus 1 upon 4y is equal to 11 upon 4। ठीक है, ये अब हमें यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा तो कोएफिशिएंट देख लो, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, यहाँ पे सॉरी 1/3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10/3 है, यहाँ पे 2x का कोएफिशिएंट है, 1/4 is the coefficient of y, 11/4 is the coefficient is a constant। So if you observe this, so if you eliminate this, or if you remove this 4 from this equation, 4 from this constant, and 3 and 3, so first of all what is the target? अब ये डिनोमिनेटर वाला 3 है वो इसको एलिमिनेट करना है। अब ये डिनोमिनेटर में है तो क्या करना पड़ेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3। सो 3/3x plus 3 into y is equal to 10/3 into 3। So what will happen? This 3 cancel with each other, 3 cancel with each other. So you get a new equation, x plus 3y is equal to 10, and this is your final equation. Okay, now similarly, if you observe this, so here we don't want 4, so अगर डिनोमिनेटर में 4 है तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो, तब जाके वो एलिमिनेट होगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 4, 4 into 2x plus 4/4y is equal to 11/4 multiplied by 4। Same way, 4 cancel with each other, 4 cancel with each other. So 4 into 2, 4 2s are 8x plus y equals to 11. So this is your second equation. So now what is the next step? Simplify this. अब यहाँ पे भी अगर हमने नोटिस किया होगा तो देख लो कोएफिशिएंट फिर से अलग अलग आ रहे हैं। ओके, सी कोएफिशिएंट ऑफ x is 1, coefficient of x is 8 in a second equation, coefficient of y is 3 in a first equation, coefficient of y is 1 in a second equation, constant 10 है, यहाँ पे 11 है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमें क्या चाहिए? कोएफिशिएंट सेम चाहिए था, बट कोएफिशिएंट सेम है क्या यहाँ पे? सो कोएफिशिएंट सेम नहीं है। अब फिर से एक नया कैलकुलेशन आता है यहाँ पे, एक तो कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, ठीक है, बाय हुक और क्रुक हमें जीरो बनाना है तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम आएगा या फिर इस x का कोएफिशिएंट सेम रहेगा या फिर दोनों का सेम रहेगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मान के चलो मुझे इसको एलिमिनेट करना है, किसको? x को, तो यहाँ पे 8 है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे 1 है। अगर तो मैंने जस्ट लाइक एज प्रीवियस वन, अगर मैंने इक्वेशन 1 को, इसको अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 3, हाँ सॉरी 8 करता हूँ तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो नाउ टू एलिमिनेट, भाई ये लिखना जरूरी है क्या? टू एलिमिनेट y, नहीं x एलिमिनेट कर रहे हैं, टू एलिमिनेट x मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3।
फिर से 3 हो रहा है, 8 करना है भाई. So we get a new equation 8 into x, 8x plus 8 threes are 24y is equal to 8 tens are 80. So ये हमारा क्या है, एडवांस वर्जन है किसका, इक्वेशन 1 का. तो मैंने 1 कंटिन्यू कर दिया, यहाँ पे भी लिख दो, ये सेकंड इक्वेशन है. अब क्विकली हम क्या करेंगे, ये दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे. सो व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल. ओके, राइट डाउन फर्स्ट एग्जांपल. 8x plus 24y 8x plus 24y is equal to 80 is equal to 80. First example. Second one, 8x plus y is equal to 11. 8x plus y is equal to 11. So this is second. Let's check it. 8x plus y is equal to 11. 8x plus y is equal to 11. सही है. Okay. चलो. Now let's move to the next one. अब यहाँ पे देख लो करना क्या है. अब हमने तो डिसाइड कर लिया भाई किसको एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है. मतलब हमें यहाँ पे 0x आना जरूरी है, ये हमने पहले ही लिख दिया. अब 0 कब आएगा, जब हम इसको 8 माइनस 8 करेंगे तब. ओके, अगर 8 माइनस 8 करोगे तो जाके ये 0 होगा. ओके, अब सब्सट्रैक्शन तो लेनी है, हमने ये डिसाइड कर लिया. सो देयरफॉर सब्सट्रैक्ट दीज इक्वेशन. अब सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम, तो क्या होगा एक बार फिर से देख लेते हैं. ये आपको पता है, अगर आउटसाइड द ब्रैकेट अगर माइनस साइन है तो वो माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाने के बाद क्या होता है, जो अंदर प्लस ए है उसको माइनस ए में कन्वर्ट कर लेता है. अब सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा. आउटसाइड द ब्रैकेट माइनस है तो ये प्लस 8 होगा, माइनस 8 प्लस वाई होगा माइनस वाई प्लस 11 बनेगा माइनस 11. क्लियर है. नाउ 8 माइनस 8 0 बन गया. 24 माइनस 3 करोगे, सॉरी 24 माइनस 1 करोगे तो ये बन गया 23y इज इक्वल टू 80 में से 10 चले गए 70, 70 में 79 बन गया. ठीक है. अब मान के चलो 3 3 जा 9 हो रहा है, 2 3 जा 6, 23, चलो 23 अपॉन 80. ओके, सो नाउ 23 अपॉन 80 जो हो रहा है, लेट जस्ट 1 मिनट. सो 2 6, ओके. यहाँ पे थोड़ा सा देख लो एक बार, कुछ तो गलत हो चुका है, ये गलत हो चुका है. सो यहाँ पर 80 में से मतलब क्या आएगा 70, 79 80 नहीं 69 होगा. ठीक है. सो 69. सो देयरफॉर y is equal to 69 अपॉन 23 कर लो. सो y is equal to 23 3 जा. चलो सिमिलरली अब ये y is equal to 3 तो मिल गया हमें. सो पुट y is equal to 3 इन इक्वेशन. कौन सा, मान के चलो अगर पहला वाला आसान वाला लेना है तो आप आसान वाला ले सकते हो. x plus 3y is equal to 10. x plus 3y equals to 10. y is equal to 3 है तो सॉल्व कर दो. x plus 3 into 3 equals to 10. Therefore x plus 9 equals to 10.
So x is equal to 10 minus 9, x is equal to 1. So your solution is x is equal to 1 and what do you call it as y is equal to 3. So ये होगा आपका solution. Very good. So 1 and 3 is your solution. अब लास्ट में कैसे लिखोगे? So solution is equal to x is equal to 1, y is equal to 3. So likewise हमें क्या करना है? इसका solutions लिखना है. अब बहुत से बच्चों को एक और एक क्वेश्चन आता है, उसमें डिफिकल्टीज आती है कि अगर कोएफिशिएंट जो इंटरचेंज कोएफिशिएंट होगा, इंटरचेंज कोएफिशिएंट मतलब क्या है? जहाँ पे कोएफिशिएंट x का है पहले एग्जांपल में, तो दूसरे का वहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट वो y का है. सो वो वाला एक एग्जांपल हम सॉल्व कर देते हैं. सो इंटरचेंज ऑफ कोएफिशिएंट हम क्या डिस्कस करेंगे अब? साइमल्टेनियस इक्वेशन विद द इंटरचेंज ऑफ कोएफिशिएंट. सो इंटरचेंज ऑफ कोएफिशिएंट मतलब कोएफिशिएंट खाली चेंज होगा. ओके जैसे कि स्कूल में आप मैथ्स का अगर ज्योमेट्री का कुछ काम होगा तो पेंसिल हम इंटरचेंज करते हैं. कभी आप दोस्त को पेन दे देते हो तो सेम पेन वापस भी ले लेते हो, आप एक दूसरे में इंटरचेंज कर लेते हो. सो सिमिलरली अगर ऐसा कोई इंसिडेंस है तो देख लो यहाँ पे x, एक एग्जांपल हम समझ के लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 499 है. चलो नेक्स्ट वन सिमिलरली x प्लस वाई इज इक्वल टू 501 है. ओके अब यहाँ पे देख लो कोएफिशिएंट जो है x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 99 है. अब वही कोएफिशिएंट दूसरे एग्जांपल में y का कोएफिशिएंट है. चलो अब पहले में y का कोएफिशिएंट है 101, अब दूसरे में वो x का कोएफिशिएंट है 101. मतलब कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट y के साथ इंटर शेयर हुआ है या फिर इंटरचेंज हुआ है, x का कोएफिशिएंट दूसरे के y के साथ कोई इंटरचेंज हुआ है. सो इन दिस केस अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? सो दैट एग्जांपल कम्स अंडर इंटरचेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस. नाउ let's try this. So first coefficient is 99x. Okay, second coefficient is 101. Let's assume it. This is equation number 1. This is equation number 2. Now if you observe this, अब एग्जाम्पल को अगर मल्टीप्लाई करोगे, पहले एक मेथड से हमें पता है कि अगर कोई कोएफिशिएंट इक्वल करना है तो पहले को अगर 99 से मल्टीप्लाई 99 से करो, दूसरे को 101 से करो. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो एक काम करेंगे हम, इसमें जो शॉर्टकट मेथड आपको बताया है उसी मेथड से जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन क्या करेंगे हम? सो देयरफॉर ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. ओके सो सिंपल उसमें लॉजिक क्या है? एक बार ऐड करो, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2. एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है अब एक ही काम कर लेते हैं हम, थोड़ा सा एक जो हमारा स्पीकर चालू है क्या वो देख लेते हैं. वेरी गुड, रिकॉर्डिंग शुरू है, माइक भी चालू है. कभी कभार ये हो जाता है कि हम लेक्चर खत्म कर देते हैं और माइक बीच में बंद हो जाता है. सो ऐड दिस इक्वेशन. सो द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड बोला है, सो राइट डाउन फर्स्ट इक्वेशन 99x plus 101. So 99x plus 101y is equal to 449. पहला इक्वेशन हो गया. ऐड बोला है, so just write on here plus
101x plus 99y is equal to 501. Now add this. 9 plus 1, obviously we got 10, carry 1, 4 plus 1, 5. Oh sorry, 499, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया अपना, 499 है, तभी मैं सोचूं कैलकुलेशन में गलत है। सो 9 प्लस 1 ये होगा आपका 10, कैरी हो गया 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10, सो इट इज 1000. सो 99 प्लस 1 100, तो ये बनेगा 100 प्लस 100 200x plus 200y is equal to 1000. So therefore ये फिर से बड़ा इक्वेशन आ गया. सो व्हाट इज अ कॉमन 200, ये तो इसका जो एलसीएम आ रहा है वो 200 आ रहा है. सो डिवाइड दिस बाय 200. सो नाउ so divide it by 200. So therefore after division x plus y is equal to 200 5 जा 1000 हो जाता है. So this is your new equation. Let's assume it फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये मान के चलो तीसरा है. नाउ सब्सट्रैक्ट द अबो इक्वेशन. सो सब्सट्रैक्शन करनी है. सो सिमिलरली थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं, दिखे थोड़ा अच्छा. चलो. सो देयरफॉर 99x plus 101y is equal to 499 minus what is that 101x plus 99y is equal to 501. चलो एडिशन तो हो गई. अब सब्सट्रैक्शन का जो अपना जो रूल है वो पहले हम अप्लाई कर देते हैं. इसमें होगा क्या, ये माइनस है, इसका मतलब सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब साइन यहाँ पे इन्वर्जन होगा, ये माइनस बनेगा, ये भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा. अब सॉल्व करके देख लो. 101 माइनस 99, 99 प्लस 100, 100 प्लस 1 201, तो क्या बचा यहाँ पे 2x. सो बिगर टर्म उसका साइन आएगा. चलो. सो 101 माइनस 99 वंस अगेन 2y इज इक्वल टू 499 में से 500 एक नहीं जाएगा तो 501, 501 में से 499 माइनस करना पड़ेगा और उसका आंसर आएगा आपको 99, मतलब होगा 500 और ये 2. अब फिर से इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत भाई, क्योंकि x प्लस वाई में आ रहा है हमारा इक्वेशन, तो यहाँ पे भी x प्लस वाई में ही हमें कन्वर्ट करना है. अब एक तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, हमें -2 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. अब -2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, या फिर 2 से भी डिवाइड कर लो तो भी चल सकता है. ठीक है. अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो मैं इसको -2 से डिवाइड करूंगा. मुझे अगर x को एलिमिनेट करना है तो मैं खाली 2 से डिवाइड करूंगा. ये पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मिलती है आपको. अब चलो, यहाँ पे दो कॉमन आ रहा है तो मैंने क्या कर दिया, सो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2. सो डिवाइड बाय 2. सो 2 बाई 2 1 हो जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1. -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1. अब इसमें देख लो, कोएफिशिएंट जो है y का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट +1 है, x का कोएफिशिएंट भी +1 है. अब मतलब अगर हमने यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्शन करने की सोची तो क्या होगा, हमें इसका कोएफिशिएंट x को और -x को अगर हम ऐड करेंगे तो 0 मिल जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, ऐड द अबोव इक्वेशंस. ओके, कौन से इक्वेशन ऐड करेंगे, 3 एंड 4. लेट्स ट्राई दिस.
पहला 3 कौन सा है देख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। चलो सो एड above equation x plus y equals to 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मिला। अब दूसरा क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू -1। इस बेचारे का नंबर है 3, इसका है 4। चलो नाउ ऐड द अबो इक्वेशंस। चलो लेट्स ऐड दिस। अब यहाँ पे देख लो, ऐड करना है मतलब प्लस तो लिखना पड़ेगा। अब मैंने लास्ट में बोला है ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है फिर वो ए है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो ए ही रहेगा, पॉजिटिव ही आएगा। ओके नाउ प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, प्लस वाई ऐड हो गया, ये हो गया +2y इज इक्वल टू 5 - 1 4 हो गया। ठीक है, अब 4 तो आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। y इज इक्वल टू 4/2। y इज इक्वल टू क्या होगा, 4/2। so 2 1s are 2, 2 2s are 4, so therefore y is equal to 2। ठीक है, so y is equal to क्या मिला आपको, 2 मिला। अब हमें x भी तो निकालना है, या फिर पहले हमने कहाँ पे कहीं पे देखा है कि x की वैल्यू मिली है हमें, नहीं। सो अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम, टू फाइंड, किसको फाइंड करना है, टू फाइंड x पुट y इन इक्वेशन। अब कोई भी इक्वेशन ले लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसमें हम पुट करेंगे। x हमें निकालना है तो ये बेचारा एज इट इज रहेगा, y की वैल्यू हमें पता है 2 है और ये कांस्टेंट है, तो x इज इक्वल टू 5, ये बेचारा यहाँ से माइग्रेट होके वहां पे चला जाएगा तो 5 - 2 बनेगा। तो भाई x की वैल्यू क्या आ गई, 3, और यो है हमारा आंसर। कितना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है या फिर कैसे दिया है, इससे हमें डरना नहीं है। अब ये किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या लॉजिक बना सकते हैं, ये हमें देखना है। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो पहला नो अटेम्प्ट था, जो हमने नया सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो इसमें ये हमारा पहला अटेम्प्ट था और यहीं पे हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। सो अब नेक्स्ट मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, जस्ट वी विल सॉल्व दिस बाय ग्राफिकल मेथड से। So solve a simultaneous equation by graphical method and by Cramer's rule. So thanks for watching। अब आपका क्या है, जस्ट वीडियोस तो लाइक करना है, शेयर करना है, और आपको एक नया टास्क है सब्सक्राइब भी करना है, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए